यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु इस वक्त को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया, हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, उसके धन्यवाद प्रभु। पिता इस वक्त आपके पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु आज के सुंदर सुबह के वक्त पिता हमारे हृदय को तू छू पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी आशीष है वो हमारे ऊपर बहने दे पिता परमेश्वर। और प्रभु तू हमें नया कर पिता, आपका अभिषेक हमारे ऊपर तू दे पिता परमेश्वर आज के इस दिन परमेश्वर। प्रभु इस वक्त पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह आपकी कृपा से हमें तू भर दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सब कुछ भूलकर सिर्फ आपकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, तू विजयी परमेश्वर है। आपका प्रेम तू बरसने दे पिता परमेश्वर, होने दे पिता इस जगह पर पिता परमेश्वर, हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को, आपके आशीष को तू बहने दे परमेश्वर, आपकी शांति को पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दे हर एक के परिवार में, कलीसिया के हर एक लोगों पे पिता परमेश्वर चंगाई हो, उद्धार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ।
तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। क्या
आ
तेरे समान आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया all these saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All these saints and angels that bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night 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 day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you all are things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you all are things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you all are things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. And I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee, O Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all are things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from you all are things, and to you all are things. You deserve the glory. हाँ प्रभु यीशु, सारी महिमा और आदर और गौरव के योग्य आप हो पिता परमेश्वर। आप ही योग्य परमेश्वर हो प्रभु। जो महिमा और आदर आपको देते हैं वो किसी मनुष्य को नहीं दे सकते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आपको आदर और महिमा मिले पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए पिता परमेश्वर।
Good morning, church. Let's partake in the bread and the cup. And for the scripture, for the word, I'm going to read from Hebrew chapter 9, verse 11 and 12. But Christ came as a high priest of good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. We want to really thank our Lord Jesus Christ for all that He has done for us. We don't have to, like the Old Testament, kill animals again and again, but Christ came as the Lamb of God who died for our sins. When John the Baptist seen Jesus coming, he said, "This is the Lamb of God who takes away the sins of the whole world." We remember the death, the burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. And Jesus Himself gave us, and He said, "Whenever you break bread and partake of the cup, do this in remembrance of me." Remember, Jesus became poor for our sake. He had made us rich in all ways. He became a curse for us, that we might have the blessing of Abraham through Christ Jesus. He died our death, that we may have His life. Breaking of bread and partaking of the cup, it's called the love feast. It's sad that He died for us. But we do rejoice that Jesus not only died and was buried, but He rose again from the dead on the third day. He came as a servant, but now He will come again as the King of Kings. Let's commit ourselves to our Lord Jesus Christ once again and partake of the bread and the cup. Thank you, Lord Jesus. I want to thank you. We remember the body which was broken for us. Thank you for the stripes you bore on the cross for us. And today we claim healing in the church, and each one of us, healing in our spirit, soul and body. We remember those who are working for this pandemic, the doctors, the nurses, even those who are suffering. Lord, have mercy upon us. Thank you, Lord Jesus. In the same way, He partook of the cup and He said, "This is the blood of the new covenant." And thank God for the new covenant He has made with us, that He will never leave us nor forsake us. And we also remember that He is coming again for His bride. Thank you. Today, if you feel that you are under sin, under condemnation, remember, Jesus does not condemn you. But if you feel that way, this is the right time to commit yourself to the Lord Jesus Christ, confess your sins, and He is good and is just, is loving and kind to you to forgive all our sins. Let's partake of the bread and cup. प्रेज लॉर्ड चर्च, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में वचन बांट पाऊँ। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बातें करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तो हमसे बातें कर पिता, भर दे तेरी आत्मा से, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमारे जीवन को बदले पिता, तेरी चीज़ें, तेरी बातें हमारे अंदर बनी रहे प्रभु तो हमें बदलाव और पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में बढ़ा पिता परमेश्वर तेरी चीज़ें तो हमारे अंदर बनाए रख प्रभु, हम तेरे लिए विश्वास योग्य रहें प्रभु। पिता परमेश्वर
अंतिम समय तक परमेश्वर हम तेरे लिए विश्वास योग्य रहे, तेरे पीछे चलते रहे। ये सारी प्रार्थना विनती तेरे पवित्र आत्मा में रखता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर है वो रक्षा करने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो मेरा आज का जो वचन है उसका जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल है वो ये है कि हम परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। हालेलुया। तो जैसे हम जानते हैं कि अभी हम पर जो ये मुसीबत अचानक से आ पड़ी है, जैसे हम कोविड-19 या पैंडेमिक या महामारी कहते हैं, तो कभी कभी हमारे ऊपर ये सवाल उठता है कि परमेश्वर क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कोई भी चीज़ जो होती है वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर इससे हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं कुछ हालातों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमें कभी कभी गड़बड़ी में लाती हैं। हम सोचते हैं ये हमारे साथ क्यों, हम ये सोचते हैं कि प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो, मैं इन चीज़ों में क्यों फंसा, मैं ये गड़बड़ी में क्यों आया। लेकिन बाइबल बताती है आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालेलुया। वी ऑल हैव अ पर्पस। परमेश्वर ने एक उद्देश्य हमारे लिए रखा है, लेकिन उन चीज़ों को खराब करने के लिए दुष्ट हमारे बीच में कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। देखो मैं नहीं जानता कि आपकी अब की स्थिति क्या है। हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि परमेश्वर हर एक बुरी स्थितियों में से निकालने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं किसी पवित्र शास्त्र से एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करूँगा जो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आमीन। हम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय मानते हैं। आमीन चर्च, हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। हालेलुया। और जब कभी भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम हिल जाते हैं कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों। देखो कभी कभी मैं ये जानता हूं कि हमारी जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण है। हालेलुया। आप शायद कोई बहुत ही बुरी स्थिति में होंगे। आमीन। मेरा बोलने का मतलब है कि शायद आपके पास आज काम नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है आपके घर में शायद खाने की कमी है या कुछ भी ऐसी गड़बड़ी है, और ऐसा है कि अचानक से आपके ऊपर कोई स्थिति आकर पड़ गई है और आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये सारी चीज़ें मेरे साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें हर पल परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये कब हम करते हैं, ये कब हम कह सकते हैं, जब हम उसको जानते हैं। तो मेरे प्यारे लोगों, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ आज जो अपने परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने परमेश्वर को हमेशा देखता है, वो जानता है कि उसका परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे लिए क्या कर रही है, उन चीजों को मत देखो। तुम ये देखो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया बोल सकते हैं। आमीन। तो मैं आज आपके वचनों में ये चीज़ बांटना चाहता हूँ। अय्यूब के बारे में आपको मैं अय्यूब के किताब से मैं इन चीज़ों को बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। आप सभी ने अय्यूब की किताब पढ़ी होगी, और इंग्लिश में जिसे जॉब कहते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। बाइबल उसके बारे में बहुत अच्छा कहती है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी मेरे बारे में ऐसा कहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों के बारे में, मेरे कलीसिया के बारे में, मेरे पासबान के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में परमेश्वर ऐसा कहे। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है उसके बारे में ध्यान से सुनो। बाइबल बताती है, अय्यूब का पहला अध्याय पहला वचन कहता है कि ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हालेलुया। वह खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चार चीजें हमने देखी यहाँ पे, खरा, सीधा और भय मानना और बुराई से दूर रहना, ये चीजें परमेश्वर को बहुत भाती है मेरे प्यारे। हालेलुया। आप बोलेंगे
किस तरीके से लड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हारे दिल के अंदर झांकता है, क्या तू खरा है। देखो, अच्छा सब हो सकते हैं, हम ये दुनिया जो है ना वो अच्छाई को दर्शाती है। मैं यहाँ भी अच्छा हूँ, मैं वहाँ भी अच्छा हूँ, लेकिन बाइबल ये नहीं देखती, या परमेश्वर वो नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि तू खरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू सही है, क्या तू सत्य पर चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। जब ये चीजें हमारे अंदर बनी रहती है ना मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के नजरों में सबसे आगे, या परमेश्वर के नजरों में हम बने रहते हैं। हालेलुया। आइए हम देखें कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है, हमारे बारे में बातें करता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में बातें करता है? मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में बातें करेगा जब मैं इन चीजों को लेकर चलूंगा। आपको पता है परमेश्वर किसके सामने बातें करता है? वो उसके उपस्थिति में जितने लोग हैं, जो लोग उसके पास आते हैं, उसके सामने परमेश्वर बात करता है। हम देखते हैं, आइए हम देखें उसी में 7वां वचन। हालेलुया। वो कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? परमेश्वर उसको पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उन्हें उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते आया हूं। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की तारीफ करता है। मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर ये जानता है कि इसके जैसा धरती पे और कोई नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उसके जैसा और कोई नहीं, जो मुझसे मेरा भय मानने वाला है, मेरे पीछे चलने वाला है। और बाइबल ये भी बताती है कि अगर हम 5वां वचन देखें तो जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते हैं तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप किया और परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता। हालेलुया। बाइबल बताती है वो अपने बच्चों के लिए भी बलिदान करता ताकि वो परमेश्वर के साथ बने रहे, उसके बच्चे परमेश्वर के साथ बने रहे। देखो, कलीसिया आज है कि आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम इस तरीके का जीवन जीते हैं? लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हमें लगता है अरे अब मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु की चीज़ें में बना हूँ, तो मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है आगे बहुत सारी तकलीफ अय्यूब को आती है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि शैतान परमेश्वर के पास अधिकार मांगता है और परमेश्वर कहता है कि तू उसकी सारी चीज़ों को ले सकता है लेकिन उसके शरीर को छोड़ दे। हालेलुया। बाइबल बताती है वो अपने बच्चों को खो देता है। बाइबल बताती है उसकी सारी जायदाद चली जाती है। बाइबल बताती है उसके बदन पे फोड़े आ जाते हैं। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ कुछ भी छोटा ऊंच नीच हो जाती है तो हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। हम परमेश्वर को सवाल करके पूछने लगते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, मैं तो तेरे पीछे सही तरीके से चल रहा हूं। लेकिन हम यहाँ पे अगर अय्यूब का जीवन देखें तो उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, उसके कमाई हुई जो जायदाद है वो पूरी दुश्मन आके ले जाते हैं, ये बाइबल में लिखा है। और हम देखते हैं कि उसके बदन पे फोड़े आ जाते हैं। हालेलुया। मतलब उसको हर तरीके से एक तकलीफ आती है। लेकिन बाइबल बताती है, और उतना ही नहीं, अगर आप पूरे पवित्र शास्त्रों को पढ़े उसमें ऐसा लिखा है कि उसके दोस्त भी जो है ना उसकी मदद नहीं कर पाते। और एक जगह पे ऐसा लिखा है उसकी पत्नी उसे कहती है कि तू परमेश्वर को बुरा भला कह और मर जा, ऐसा करके कहता है। ऐसा करके ये चीजें होती हैं। लेकिन हम देखते हैं अय्यूब जो है उसको पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के पास होता है। तो मेरे प्यारों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम भी अय्यूब जैसा विश्वास, अय्यूब जैसा भरोसा उस पर रखें। आज भले हमारी परिस्थिति बहुत तकलीफदायक है, गड़बड़ी में अगर हम हैं, हमें कमी घटी है, लेकिन हमें ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारा कार्य करने वाला परमेश्वर है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही जैसे मैंने आपको बताया उन्हें उसके बच्चे खो दिए, उसको पैसे की तकलीफ हो गई, जब उसका पूरी जायदाद खत्म हो गई, उसके बाद ऐसा देखते हैं उसके शारीरिक तकलीफ, उसके शरीर पे फोड़े आए गए, और ऐसा है जो दोस्त उसको मदद करने वाले थे वो भी उसकी मदद नहीं कर पाए, जो पत्नी जो थी वो साथ देने वाली पत्नी थी वो भी बोलती है कि परमेश्वर को बुरा भला कहे और मर जाए, अब वो अकेला रहे। तो मेरे प्यारों, शायद आप में से कोई है जो अभी ये सोचता होगा कि प्रभु मैं आज अकेला हूँ, प्रभु मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, प्रभु मुझे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप अपने विश्वास को न छोड़ें, अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने अय्यूब के बारे में शैतान को कहा, उसका मतलब है कि परमेश्वर उस चीज़ों को अपने पास बनाए रखा था, इसलिए वो चीज़ों को बताता है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज हम भरे कोई भी परिस्थिति से गुजरे, कोई भी तकलीफ में से गुजरे, हालेलुया, लेकिन हम जब अपने परमेश्वर को जानते हैं ना, तो हम परमेश्वर की चीज़ों को देख पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि अय्यूब अपने परमेश्वर को जानता था। उसने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है, 42 अध्याय में जो आखिरी अध्याय है उसमें ऐसा लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता, हालेलुया। अय्यूब कहता है परमेश्वर से कि तू सब कुछ कर सकता है, और मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परीक्षा, जो तकलीफ में से अय्यूब गया था, परमेश्वर उसके साथ वहां भी था, हालेलुया। वो जानता था कि मेरा जो सेवक है वो मेरे लिए विश्वास योग्य है। तो कलीसिया, आज हमारी बारी है। आज जो ये महामारी, आज जो तकलीफ में, आज हमें परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम पे परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। लेकिन आप बोलेंगे, ब्रदर आपको मेरी हालत मालूम नहीं है, ब्रदर आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन सा तकलीफ में से गुजर रहा हूँ, ब्रदर आपको मालूम नहीं है मैं कितना रोया हूँ या कितने रोई हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, परमेश्वर उन सारी चीज़ों का हिसाब रखता है, हालेलुया, हालेलुया। जो भी एक एक आंसू आपने बहाया है उसका परमेश्वर हिसाब रखता है, हालेलुया। आइए हम देखें वो चीज़ों को। भजन संगीता का 56वां अध्याय हम देखें, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है मेरे लोगों, हालेलुया। अगर हम देखें भजन संगीता का 56वां अध्याय और 8वां वचन, जो यूं कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्योंकि उसकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है क्या। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर को दाऊद यहाँ पे कहता है कि तूने मेरे आंसुओं को एक कुप्पी में रखा है और उसका भी हिसाब तूने लिख के रखा है। परमेश्वर तुम्हारे हर एक दुख, हर एक तकलीफ का एक हिसाब रखता है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है मेरे प्यारों, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं हमसे सवाल पूछते हैं, अरे तू तो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हालेलुया। तो वो चीज़ें हमें भटकाती हैं, फिर हम अपने ऊपर, अपनी उन चीज़ों पर शक करते हैं, हालेलुया। ये हमारे साथ नहीं, ये दाऊद के साथ भी हुआ था। तो दाऊद परमेश्वर को ये बातों को कहता है। आइए हम देखें भजन संगीता का 42वां अध्याय और 3 वचन यूँ कहता है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा है कि लोग मुझे आके पूछ रहे हैं कि यार तेरा परमेश्वर कहाँ है। आज आप ऐसी परिस्थिति में होंगे, शायद हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, अगर हम मसीह में हैं तो लोग पूछते होंगे कि अरे तुम्हारा परमेश्वर क्या है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये चीज़ें हमारे अंदर, हमारे प्राणों को हमारे अंदर बहुत गड़बड़ी लाती है, हमें भटकाती है, हालेलुया। और ऐसा होता है कि हम अंदर ही अंदर बेचैन हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाते हैं, अरे अब कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, अब ये चीज़ों को कैसे पार करेंगे, हालेलुया। उसी अध्याय में 42वें अध्याय में 5वें वचन में यही चीज़
दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पे आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर से उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्या आप दाऊद के जैसे अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं? क्या आप अपने प्राण को उत्साहित कर सकते हैं? तो आइए हम आज अपने प्राण को, हम अपने अंदर से उत्साहित हो जाएं कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी में 11 वचन में आपको बताता हूं, वो ये कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर से उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसी परिस्थिति हम पर आती है ना, जिस परिस्थिति का मुकाबला हम नहीं कर सकते, जो तकलीफ हम पर आती है वो तकलीफ को हम पार नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी तकलीफ हो। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी हो, आपके पास काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा है कि घर में गड़बड़ी है, परिवारों में गड़बड़ी है, रिश्तों में गड़बड़ी है। शायद ऐसा होगा कि घर में एक आप अकेले विश्वासी हैं, बाकी सब आपके विश्वास के विरुद्ध है। हालेलुया। तो आपके प्राण में, आपके अंदर वो चीज़ व्याकुलता आएगी, प्रभु इन चीज़ों को कैसे हम पार करें, इन चीज़ों पे हम कैसे विजय पाएं। हालेलुया। लेकिन दाऊद की बातों को याद रखो। क्या तुम अपने परमेश्वर को जानते हो? दाऊद अपने प्राण से कहता है, क्या कहता है? बहुत खूबसूरत वचन है ये, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। उसका मतलब है तू अंदर से अंदर क्यों डर रहा है। हालेलुया। और कहता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है, क्यों तू बेचैन है। आज हमारे अंदर बहुत बेचैनी है मेरे लोग, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसकी सरकार, आज हमें सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, या कोई भी तरीके से आज हमें सपोर्ट नहीं है। लोगों की नौकरियां नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हर एक तरफ हम देखें तो व्याकुलता, डर आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परिस्थिति को देखोगे ना, तो आपके अंदर व्याकुलता आएगी, आप गड़बड़ी में होंगे। जैसे हम देखते हैं कि जब चेले यीशु मसीह के साथ सफर कर रहे थे नाव में और तूफान आ गए। हालेलुया। और बाइबल बताती है तूफान के वजह से शिष्यों के अंदर एकदम व्याकुलता आ गई, एकदम व्याकुलता। और वो बोलने लगे, अरे हम मर रहे हैं, हम मरने वाले हैं। हालेलुया, हम मरते जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह को पुकारते हैं और बाइबल बताती है यीशु मसीह खड़े होकर तूफान को आज्ञा देता है और तूफान शांत हो जाता है। हालेलुया। तो उसी तरीके से आज हमारा काम है कि हम परमेश्वर के पास आए। देखो यहाँ पे दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो। उसी तरीके से मैं आज आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरे प्यारों भाई बहनों, कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है क्योंकि वो मेरी मुख की चमक है। हालेलुया। क्या परमेश्वर तुम्हारे मुख की चमक है? क्या उसका नूर तुम्हारे मुंह पे चमकता है? हालेलुया। आज परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो असंभव को संभव करने वाला है मेरे लोग। उसने बहुत सारी ऐसी बातें मेरे जीवन में संभव की है, मैं उसकी एक जीतता जागता गवाही हूं। हालेलुया। और उसने कहा कि वो मेरे मुख की चमक है और वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं फिर से उसका धन्यवाद करूं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं कि कब हम किसी का धन्यवाद करते हैं। जब कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हम ये देखते हैं कि हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद अपने परमेश्वर को जानता है मेरे लोग, वैसे मैं चाहता हूँ कि क्या हमारा रिश्ता आज वैसा है कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हमारा परमेश्वर हमारी मुख की चमक है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है ना, जो आपकी मरी हुई परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको जिलाएगा। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। शायद आज आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आज आप सोचेंगे, अरे आज तो मेरा पूरा सारा चीज खत्म हो गई, अभी मैं आगे नहीं जी पाऊंगा, शायद आज मैं मरने पर हूं।
आप में से कुछ सोचते होंगे कि आज हम खत्म हो गए, हमारा कल फ्यूचर नहीं है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्महत्या करना सलूशन नहीं है मेरे लोगों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारी चीज़ों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने सेवकों को उन लोगों के पास भेजता है जिनकी आशा नहीं है, जो खत्म हो रही है। आमीन। हालेलुया। आज ये परमेश्वर का वचन आपके पास आया है मेरे लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक जो विधवा थी अपने बेटे को, जिनके पास थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था, वो खा के वो मरने वाले थे, लेकिन वो एलीशा को बोलते हैं कि हम तो खा के मरने पर है। एलीशा उनसे कहता है कि वो आटा तो मुझे बना के ले दे। उस समय ऐसा होता है कि मेरे लोगों, उस जगह की अगर बैकग्राउंड हम पढ़े तो उस टाइम अकाल पड़ा होता है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत सारा तकलीफ है। और ये विधवा जो थी उसके पास थोड़ा सा आटा और तेल होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लोगों, आज आपके पास कमी घटी हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर अगले क्षण में तुम्हारे लिए चमत्कार करने पर है। क्या वो स्त्री ने ये सोचा था कि चीजें बहुगुणित होंगी? वो स्त्री ने ये सोचा था कि ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी? हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वो रोटी बना के जब एलीशा के पास लाती है और एलीशा उन चीज़ों को आशीषित करता है, बाइबल बताती है अकाल खत्म होने तक वो चीज़ें बहुगुणित होके जाती है। आमीन। हालेलुया। वो चीज़ें बहुगुणित होती है। वो लोग जो उन चीज़ों को खाकर उस दिन मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर उन्होंने, बाइबल बताती नहीं है कि उन्होंने कोई प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं भेजा, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। उसने एलीशा की जरूरतों को पूरा किया और एलीशा के द्वारा उसने इनको आशीषित किया। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और हमारे द्वारा औरों को भी आशीष करेगा। क्या आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा लोगों के लिए आशीषित बन सकते हैं। तो जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो हम परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं। तो आइए हम देखें पहला शमूएल का 2 अध्याय और 6 वचन, जो यो कहता है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतरता है और उससे निकालता भी है। हालेलुया। यहाँ पे जो वचन है, जो हन्ना प्रार्थना करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्ना जो है वो एक बांझ व्यक्ति है। हालेलुया। और उस समय पे बांझपन होना मतलब एक कर्स या एक श्राप का होना होता है। लेकिन हन्ना यहाँ पे एक प्रार्थना करती है और वो परमेश्वर से वादा करती है कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तेरे पास समर्पित करूंगी। लेकिन वो एक चीज बहुत ये बताती है कि यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतरता है और उससे निकालता भी है। उसका मतलब है परमेश्वर के जो सामर्थ है उसको यहाँ पे अन्ना दर्शा रही है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो अधोलोक में उतरता है और उसमें से हमें निकालता भी है। मतलब अगर तुम्हारी परिस्थिति नरक से भी बदतर है तो परमेश्वर उसमें से तुम्हें निकालेगा। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लोगों कि आप परमेश्वर को समझें। यही बात अय्यूब समझ गया था, इसीलिए अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी बात नहीं की। उसने पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर बनाए रखा। तो क्या आज हम उस प्रकार का भरोसा, उस प्रकार का विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा होता है ना, तब हम ऐसी बातें करते हैं। हालेलुया। कभी भी हम वर्ल्ड में देखते हैं जो ये चीज़ें बोलते हैं ना कि हम शादी करते हैं तो हम एक वाचा बांधते हैं कि हम मरने तक साथ रहेंगे, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। सॉरी, ये उदाहरण के लिए ये उदाहरण ले लो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम तब कहते हैं जब हमें पता है कि इसके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटना है, ना मैं इसे छोड़ूंगा ना ये मुझे छोड़ेगा। उसी तरीके से अगर आज हमारा परमेश्वर का रिश्ता है तो हम अपने परमेश्वर को जान पाएंगे। मेरे लोग, मैं आपको बोलता हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है।
और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्यार से ना हमें कोई भी अलग नहीं करता सकता हमारे से। हालेलुया। आइए हम देखें वो बातों को। आइए हम देखें रोमियो का 8वां अध्याय और 35वां वचन, जो यूं कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? हालेलुया। कौन सी बातें हमें परमेश्वर से अलग करेंगी, प्रेम से अलग करेंगे? फिर हम देखेंगे 38वां वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अविश्वास के कारण, हमारी कमी घटी के कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। हालेलुया। हम सारी चीजों पे परमेश्वर के सामर्थ्य से काबू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारों, में आप लोगों को उत्साहित करता हूं कि अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखें, अपनी चीजें परमेश्वर पे बनाए रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें तैयार कर पड़े। प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ा। पिता परमेश्वर, हम तुझे जान सके ऐसा रिश्ता में स्थापित करने के लिए सहायता कर। हम दाऊद के जैसे कह पाए कि वो मेरे मुख की चमक है और मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। हम अय्यूब जैसा भरोसा कर पाए, अय्यूब जैसा हम आशा रख पाए। हालेलुया। कि अय्यूब ने पूरी आशा रखी थी, उसको पूरी आशा थी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जैसे मैंने 42 के वचन में, जो आखिरी अध्याय है, उसमें अय्यूब परमेश्वर के बारे में परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे लोगों में आपको उत्साहित करता हूं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमें उस पर आशा रखनी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हम गड़बड़ी में आ जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास बने रहें। हालेलुया। अभी हम कैसे परमेश्वर के पास बने रह सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की चीजों को कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बिताएं। प्रार्थना में बिताएं इन द सेंस, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। ऐसा है नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। हम अपनी सारी चीजें परमेश्वर के पास उंडेलते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुश्किल समय होता है, जब परिस्थिति गड़बड़ होती है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। ये सही बात है मेरे लोग। हालेलुया। जब हम अपनी चीजों को परमेश्वर के पास नहीं दे पाएंगे तो परमेश्वर उसका उत्तर कैसे दे पाएगा? जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को चीजें बताते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर हमें कैसे देता है? जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तकलीफ होगी ना, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सबके साथ होता है मेरे लिए। लेकिन हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हम बहुत सारा खाना नहीं खा पाते, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा खाना जरूरी है जिससे हम खड़े हो पाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशू को परमेश्वर ने कहा था पहले अध्याय और 8वें वचन में कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें तू दिन रात ध्यान दिए रहना ताकि तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली बने। ये यहोशू को परमेश्वर ने कब कहा था मालूम है आपको? कि मूसा तब मर गया था और यहोशू पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि वो इजरायलियों को उस वाचा की जमीन पे ले जाए। अचानक से उसके ऊपर ये चीजें आ गई। तो कौन सी चीज थी, कौन सी बात थी जो उसे उस जगह पे ले जाने के लिए, उस काम पूरा करने के लिए खड़ा करने वाली थी, उत्साहित करने वाली थी? वो था परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा दिन रात इस पे ध्यान दिए रहना। वचन, यीशु मसीह भी कहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम परमेश्वर पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वही चीज पिता परमेश्वर जोशुआ से कहते हैं, यहोशू से कहते हैं कि जब तक तू इस चीजों पे मनन करेगा ना, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया। आपको मालूम है यहोशू ने क्या प्रभावशाली काम किया था?
उसने प्रार्थना की थी और सूरज रुक गया। हालेलुया। वो वचन जो उसके हृदय में आया, जिसने उसको उत्साहित किया, उसने प्रार्थना की और सूरज रुक गया। और वही वचन जब देहधारी हुआ, मतलब शरीर का रूप धारण करके हमारे बीच में वास किया, जब वो नाव पे चला और जब तूफान आया, तो वही वचन जब खड़ा होके तूफान को डांटा तो वो तूफान थम गया। हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब है यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना, जो परमेश्वर का वचन है, क्या वो वचन आज तुम्हारे हृदय में है? क्या वो वचन आज तुम्हारे जहन में है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का रिश्ता या परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में है, तो कोई भी परिस्थिति में झुका नहीं सकती। चाहे हम तकलीफों में से, समस्याओं में से जाएंगे, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे विजेता से बढ़कर होंगे। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे लोगों, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। एक वचन पढ़कर मैं इन चीज़ों को समाप्त करूंगा। आइए हम देखें 8वां अध्याय का 28वां वचन। रोमियो का 8वां अध्याय और 28वां वचन ये कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो मैं ये चीज़ या ये वचन से अपने प्रचार को ख़त्म करता हूँ कि परमेश्वर से हम जब प्रेम करते हैं तो हर एक चीज़ें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो जो कुछ परिस्थिति से हम जा रहे हैं, आगे जाके परमेश्वर उससे हमारे अंदर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। इसलिए मेरे लोगों, अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास को पकड़े रखो, क्योंकि बाइबल बताती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से कहो, जैसे उस पिता ने कहा था जिसके बेटे को मिर्गी आती थी कि हे प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास को बढ़ा। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, कि प्रभु हम तुझ पे भरोसा रख पाए, क्योंकि इब्रानियों में भी ऐसा लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर विश्वास कम है, अगर आज हम विश्वास में उस तरीके से नहीं चल रहे, तो हम आज हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों, हम वो लोग हों जिससे परमेश्वर प्रसन्नित हो। हम वो अय्यूब हो जिसके बारे में परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर आपके नाम से आपको जानता है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन जो भी सुने, परमेश्वर उसके जीवन को बदले, उसके विश्वास को बढ़ाए और वो परमेश्वर पे और भरोसा रखे। तो आइए हम अब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें और आगे ले जाए। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, विश्वास के पिता, एक बार फिर से तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। जो भी गलती हमसे होती है हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे विश्वास को बढ़ा पिता, हमें तुझ पे भरोसा रखने के लिए सहायता कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तू भर दे तेरी आत्मा से। विश्वास के पिता, आप आयु और अधिकार पिता परमेश्वर, आप हर एक चीज़ों को अच्छा बनाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर, हम दाऊद जैसे कहते हैं कि तू हमारे मुख की चमक है प्रभु, और तू हमारा परमेश्वर है पिता, और हम तुझ पे ही भरोसा रखते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, अंत में परमेश्वर हर एक चीज़ हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी प्रभु। ये सारी प्रार्थना विनती तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।